चलो लेट्स कंटिन्यू आगे। चलो मैं लिखता हूँ बुक। देखो, last class we started with a new topic called subsidiary books, right? Please focus now. What are subsidiary books? Subsidiary books, is this a third book of accounts? There are only two journals, there are only two books rather, two books of accounts, they are journals and ledgers. जब हम छोटा लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, when the size of the business is small, you maintain all the transactions in one single journal. But as and when the size of the business increases, what do? You subdivide your journal into various parts. What are those parts called as? Those parts of journal are called as subsidiary books, right? We saw that in the last class, if you remember. I've also given you a note to write down which subsidiary book, what all things you record. Why do we make subsidiary? Mainly for specialization. So each particular type of entry goes in one particular book. That is the sole reason. The work becomes easier, work becomes faster, work becomes more efficient. That is the main reason of subsidiary books. Even the tally का course मैंने आपको बोला है, अभी 11th standard आपका जैसे खत्म होगा, all of you do that course of tally. Either you from Brahman Seva Samaj या Raj Computers, दोनों में अच्छा होता है. Raj Computers is better थोड़ा सा. You can take a course of tally. Basic, actually तो पूरा tally online available है, free of cost. But आपको basics अगर करना है तो रात से करो, advanced online करो, या basic और advanced दोनों वहाँ से कर लो. But tally का एक course कर लेना. तो आपका क्या अभी fresh final accounts तक accounts हुआ रहेगा, तो बहुत अच्छे से grip बैठ जाएगा computerized accounting में, okay? तो टैली का कोर्स कर लेना मार्च के महीने में आपके पास टाइम होगा तब कर लेना. देन सो सब्सिडी, क्योंकि टैली में आप सब्सिडरी सीखोगे. टैली में यू मेंटेन सब्सिडरी बुक्स, उसके बेसिस पे रिकॉर्ड द एंट्रीज. सो व्हाट आर सब्सिडरी? सब डिविजन ऑफ जर्नल. व्हिच आर द 7 सब्सिडरी बुक्स वी सॉ, रादर 9 इन सीए. एक होता है परचेज बुक. व्हाट डू वी रिकॉर्ड इन परचेज बुक? ऑल द परचेज ऑफ गुड्स. सेल्स बुक, sale of goods. Purchase return, goods returned by us. Sales return, goods returned by debtor. Mind you, all 4 books are for goods. Okay, majority, 90% of volume of a trader are of goods. दिन भर वो goods के साथ ही डील कर रहा है. आ रहा है, जा रहा है, माल आ रहा है, जा रहा है. खर्चा तो बाकी सब नॉमिनल, रेयर ट्रांजैक्शंस है. मेन ट्रांजैक्शंस आर ऑफ गुड्स, राइट? 5वां बुक होता है आपका कैश बुक. कैश बुक आपने कौन सा वाला कैश बुक किया था इन 11th standard? You did 2 columnal cash book. That was cash and bank column. यहाँ पे triple column है, cash, bank and discount. Then you have petty cash book to record all the small value cash transactions, and you have journal proper, सार्वजनिक. जो कहीं और फिट नहीं होता वो कहाँ चला जाएगा? Journal proper में, right? And there are 2 additional books. They are called as BR book and BP book. BR for BR acceptances, BP for BP acceptances. उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंसेस रिकॉर्ड होता है, ओके? तो बीआर एक्सेप्टेड एंड बीपी एक्सेप्टेड के लिए 2 सेपरेट बुक, बट दे आर फॉर थ्योरी. क्वेश्चंस उसके नहीं आएंगे आप. अब फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्सिडरी विल बी डीलिंग विद द 4 मेन बुक्स. जैसे हमने चैप्टर में भी किया था, 4 मेन बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड टू रिटर्न्स बुक. सो ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर, पेज नंबर 10, सम नंबर 1 और 1 और 2 थोड़ा आगे पीछे वहां पे. सम नंबर 10, सम नंबर 1 पेज नंबर 10. सम नंबर 1 पेज नंबर 10. ध्यान से देखना, साइड से आगे ना जाना. बुक है ना, नो टेक्स्ट बुक. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ परचेज बुक और सेल्स बुक और रिटर्न्स बुक? Draw this. Remember we did it in the beginning, 11th standard. 4 books. You can draw the 4 books on the same page. If the heading has purchase book, sales book, purchase returns book, and sales returns. What is the format of purchase book? You have date, then what do you write? Only the name of the
Supplier. What about sales book? Name of the customer. What about purchase returns again? Name of the supplier. And what about sales return book? Name of the customer. Only the names. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का नंबर आ जाता है यहाँ पे कौन सा आता है इनवर्ड इनवॉइस नंबर याद है कुछ यहाँ पे क्या आता है आउटवर्ड इनवॉइस नंबर यहाँ पे आएगा आपका डेबिट नोट नंबर और इधर आएगा आपका क्रेडिट नोट नंबर LF because these are journals and amount that remains constant. Draw the 4 subsidiary books. Purchase book, sales book, returns book. फर्स्ट पार्ट में आपको 4 सब्सिडरी बुक्स ही पूछे जाएंगे. अभी इसमें बना लो पहले फॉर्मेट बना लो. Okay. Done. First question. Just record the names. No account, no debit, no credit, nothing. Why only names? Because you know purchase book में जो भी नाम लिखोगे उसकी एंट्री क्या है? Purchase to party. सेल्स बुक में जो भी नाम लिखोगे उसकी एंट्री क्या है? पार्टी टू सेल्स. यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे उसकी एंट्री क्या है? पार्टी टू परचेज रिटर्न. यहाँ पे सेल्स रिटर्न टू पार्टी. सबकी एंट्री सेम ही है. तो टू बाय डेबिट क्रेडिट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम लिखना है. और क्योंकि सारे क्रेडिट पर हैं तो कौन सा डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होगा? सीडी. सीडी इधर आने का सवाल है ही, सिर्फ टीडी होगा सब्ट्रैक्ट. फर्स्ट वन, दे आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ श्री पवार. ऊपर लिख देना इन द सब्सिडरी बुक्स ऑफ श्री पवार. 1st January 11, supplied goods to A and company as per their order. We supplied, so which book? Sales book. तो सीधा डेट लिखना है 1/1/11 A and company and amount 2000. Quite simple. याद आया? फॉर्मेट तो किया है सबने. ओके. देन अच्छा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस याद है आपको? इनवर्ड इनवॉइस. इनवॉइस मतलब क्या है? बिल. इनवॉइस इज नथिंग बट द बिल. तो जब सेल होता है तो सेलर जो इनवॉइस बेचता है उसके लिए वो होगा आउटवर्ड इनवॉइस और हमारे लिए वो होगा इनवर्ड इनवॉइस. बराबर है? सो फॉर परचेज यू हैव इनवर्ड इनवॉइस, फॉर सेल्स यू हैव आउटवर्ड इनवॉइस. द सेम वे इनवॉइस हमने ड्रॉ भी किया था उधर सोर्स डॉक्यूमेंट. टैक्स इनवॉइस. डेबिट नोट इज द प्रूफ फॉर रिटर्निंग द गुड्स. व्हेन वी रिटर्न इट टू समवन वी सेंड अ डेबिट नोट एंड इन रिटर्न व्हाट दे विल सेंड अस? क्रेडिट नोट. तो जब सेल्स रिटर्न होता है वी सेंड अ क्रेडिट नोट एंड वी विल गेट अ डेबिट नोट. एंड जब परचेज रिटर्न होता है वी सेंड अ डेबिट नोट एंड इन रिटर्न विल गेट अ क्रेडिट नोट. याद आया? सो कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं. इंस्टेड ऑफ गिविंग नॉर्मल ट्रांजैक्शन व्हाट दे कैन गिव रिसीव्ड एन इनवॉइस. व्हाट डू यू मीन बाय रिसीव्ड एन इनवॉइस? परचेज. व्हाट डू यू मीन बाय सेंट एन इनवॉइस? सेल्स. व्हाट डू यू मीन बाय सेंट अ डेबिट नोट? Purchase return. What do you mean by sent a credit note?
Sales return. What do you mean by received a debit note? Received a debit note मतलब sent a credit note मतलब sales return. What do you mean by received a credit note? मतलब sent a debit note मतलब purchase return. Is this clear? What do you mean by Ajay received a debit note from us? Ajay received a debit note from us, so he sent a debit note, so it is purchase return. Ajay received a credit note from us. He sent a credit note, so it is sales return. तो बाकी तीनों चीज हम बना के भेज रहे हैं. ये भी भेजा है, ये भी भेजा है, ये भी भेजा है. ये सारे आउटबाउंड है. ये खाली इनबाउंड आ रहा है, क्योंकि परचेज के वक्त हम कुछ सेल्फ बनाते नहीं है. इनवॉइस वगैरह हमें जो मिलता है वही हमारा डॉक्यूमेंट होता है. ये हम बना के भेज रहे हैं, ये हम बना के भेज रहे हैं, ये हम बना के भेज रहे हैं. ये खाली मिल रहा है. तो परचेज के वक्त इनवॉइस आया, वो रिकॉर्ड होता है यहाँ पे नंबर. और बाकी सेल के वक्त we will send an outward invoice, परचेज रिटर्न के वक्त we will send a debit note, सेल्स रिटर्न के वक्त we will send a credit note. हमारे डॉक्यूमेंट्स के नंबर है, बराबर है. नंबर है तो लिखना है, वरना स्किप करना है. ठीक है. और एक खास बात, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, दीज आर योर प्रूफ्स ऑफ रिटर्न्स. तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में डेबिट नोट नंबर दे दिया मतलब वो जेन्युइनली क्रेडिट पर ही हो रहा है, मतलब इट्स ऑन क्रेडिट बेसिस. बट अगर डेबिट नोट नहीं है, वहां पे कैश मेमो नंबर आ गया, क्या आ गया? मतलब वो किस पे हो रहा है? कैश बेसिस. वो भी आएगा आगे. 11th में आपको रिटर्न्स कैश पे नहीं थे, यहाँ पे आपको रिटर्न्स कैश में आएंगे. एक चीज मैंने बताई भी थी, याद करो. 11th में हर बार ही रिटर्न्स कैसे अज्यूम करते हो? क्रेडिट पे. बट यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे अगर परचेज क्रेडिट पे तो परचेज रिटर्न क्रेडिट पे, सेल्स क्रेडिट पे तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट पे. बट अगर परचेज कैश पे है तो परचेज रिटर्न भी कैश पे होगा, और सेल्स अगर कैश में है तो सेल्स रिटर्न भी कैश में होगा. ठीक है, वो ध्यान रखना. फर्स्ट वन, सप्लाइड गुड्स टू ए एंड कंपनी, तो सेल्स बुक सीधा 2000. बॉट गुड्स फ्रॉम आर एंड कंपनी, तो विच बुक? परचेज बुक आर एंड कंपनी. कितना? 1200 less TD. So 1200 minus 10% TD, which is how much? 1080. Bombay Furniture Works supplied furniture as per their order. That will go in the journal proper. Very good, because it is credit purchase of goods or credit purchase of asset. Credit purchase of asset goes in which book? Journal proper. तो इधर नोट नहीं लिखना है, you have to make the journal proper. Journal proper looks like normal journal. Okay. What is the entry? Furniture to Bombay Furniture Works. Furniture to Bombay Furniture Works. And you have to write narration also. We are skipping narration for the time being. Skip narration, that's okay. What is the format of journal proper? It's like normal journal. Hope you know that. Hello? Journal proper is nothing but like normal journal. Furniture to Bombay Furniture Works. That is 5,000 credit purchase of asset. और कैसा है सीए एग्जाम्स में ना, आपको ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ. पांचों नहीं पूछता है, एक बुक पूछा जाएगा या मैक्स 2. मेक परचेज बुक और मेक परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक. जस्ट अ कपल ऑफ बुक, बिकॉज वेटेज इज हार्डली 4 to 5 मार्क्स. पूरे पेपर में 4 से 5 मार्क का वेटेज है, सब चैप्टर का मिला के. जर्नल, लेजर, सब्सिडरी, कैश बुक, पेटी कैश बुक सब मिला के 5 मार्क के लिए आता है. मतलब हर एक पेपर में जर्नल है जरूरी नहीं है. किसी में जर्नल आएगा, किसी में लेजर, किसी में कैश बुक, किसी में सब्सिडरी बुक, सब मिला के 5 मार्क का वेटेज है. समझा? सीए पेपर ऐसे देखा जाए तो एक एक चैप्टर में एक एक मार्क का वेटेज है. 1 मार्क के लिए इतना कर रहे हो आप मेहनत. नाउ sold goods to BM company on credit. Question है. हाँ 12 कर दो. Sold goods to BM company on credit. Which book? Sales book. 21 का 12 कर देना बेटा. Date wise जाना है. 650. Bought goods from wine company for 1500 less 20% TD. Which book? Purchase.
Purchase book, wine company, 1500 less 20% TD. So I think 1200 आएगा. Yes. Send a debit note to wine company for damaged goods. Send a debit note बोले तो क्या है? Purchase return है. Simply party's name. Is there any gross amount given? No. Gross दिया है ना तो TD माइनस करने का. कुछ नहीं दिया तो नेट. Same to same. Send a credit note to A&M company for 150. Send a credit note मतलब Sales return. sales return A&M company 150. 150. Received an invoice from Z&M company 2400. Received an invoice is what? Purchase book. Purchase book 2400. Send a credit memo. Send a credit memo. What is credit memo? क्रेडिट नोट अलग है, क्रेडिट मेमो अलग है. बिल. क्रेडिट मेमो मींस इनवॉइस. क्रेडिट मेमो मींस इनवॉइस. सो क्रेडिट मेमो आया मतलब परचेज और क्रेडिट मेमो गया मतलब सेल्स. एंड व्हाट इज कैश मेमो? कैश का बिल. आया तो कैश परचेज और गया तो कैश. सिंपल. सो क्रेडिट मेमो इज नथिंग बट इनवॉइस. तो सेंड द क्रेडिट मेमो मींस sales book 25th C and company. This is 1600. Made cash sales. No, cash sales is going cash. So that you need to write in note. Okay, cash book यहाँ पे नहीं बनाना है. Journal proper का लिए आ जाए तो बना लेना. Cash book you need not make. Cash book का note लिखना. Transaction on 26 and 29. 26th also and 29th also. Both are what? दोनों साथ में लिख सकते. हाँ, cash sale and cash purchase. Cash sale and cash purchase. Hence will go in which book? Cash book. Transaction on 26th and 29th are both cash sale and cash purchase. That will go in cash book. जेबी में नहीं लिख सकते कैश. वो गलत है ना. कैश ट्रांजैक्शन डोंट गो इन जेबी. कैश ट्रांजैक्शन हुए कैश. सोमैया और पोदार वाले घुसा देते थे बट नहीं कर. नोट में लिखते हैं. नोट में. कैश वाले नोट में. जेपी के लिए जेपी बना देते. जर्नल प्रॉपर. सप्लाइड गुड्स टू एम एंड कंपनी किधर जाएगा? एम एंड कंपनी गोज इन सेल्स बुक. दिस इज 700. Bought goods from N&M company किधर जाएगा? N&M company will go in purchase book. N&M company sent us a credit note. N&M company ने अपने को credit note भेजा, मतलब we received a credit note, मतलब we sent a debit note, मतलब it is what? Purchase returns बराबर से. Is that right? Hello. And sent a credit note to M&M company. M&S नहीं है. M&M company 75. Sent a credit note मतलब क्या हो गया? Sales return. बराबर है. M&M company 75. Sales returns. Is that clear? Total up at the end. Need to do the totals. So this is 5480. 4950. 150 and 225. 150 and 220. ओके, यहाँ तक क्लियर. अब वहां पे ऊपर एक और चीज दी गई है. पोस्ट देम इनटू लेजर्स. पोस्ट देम इनटू ledgers. So what ledgers are you going to do? Purchase account, sales account, purchase return है चाहिए. एक ही पेज पे चारों बना लो. छोटे छोटे अकाउंट्स हैं. Four accounts. लेजर का ही फॉर्मेट है, बट पोस्टिंग थोड़ा सा अलग हो गया. इन चार अकाउंट का ही अलग होता है, बाकी सबका सेम होता है. परचेज अकाउंट,
sales account, purchase return account, sales return. Four ledger account, one side will fit. Four accounts, purchase, sales, purchase return and sales return. बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग रखो. एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस. मैंने आपको वही बताया है, हर एक बिजनेस में चार ही चीजें होती हैं: एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, और उनके बेसिक रूल्स. एसेट और एक्सपेंस बढ़ा दो डेबिट, घटा दो क्रेडिट. इनकम और लायबिलिटी बढ़ा दो क्रेडिट, घटा दो डेबिट. बस. और कोई पांचवा चीज होता ही नहीं है. इनके ही रूल्स पे पूरा सिस्टम बेस्ड है. आएगा अकाउंट बुक में नहीं आता, अकाउंट में. कैश वाला है ना, कैश में जाता है ना. हम लेजर में कैश परचेस कैसे लाएगा? पोस्टिंग होगा. चलो अभी कैसे करना है पोस्टिंग को? टेक द अकाउंट्स इंडिविजुअली. पहला परचेज पे फोकस करना. मुझे बताओ ये चार अकाउंट ही क्यों बनाए? क्योंकि इन चार का पोस्टिंग थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सबका सेम है. पार्टी अकाउंट, ये सब नाम के अकाउंट, इनका अकाउंट का पोस्टिंग सब सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है. खाली चार में थोड़ा सा अलग होगा पोस्टिंग. क्या अलग होता है देखो. पहला परचेज, तो सर्च डू यू हैव एनी कैश परचेज इन दिस है? 29 को है. तो इज एंट्री परचेज टू कैश. परचेज टू कैश, तो परचेज में आएगा टू कैश अकाउंट. कितना है? 800. वो एज इट इज पोस्ट करना है, वो एज इट इज करना है. 29 जैन कैश परचेज, परचेज हो गया. अच्छा, डू यू हैव एनी डिस्काउंट रिसीव? वो है तो वो भी कर देने का. अच्छा, और कोई ड्रॉइंग्स टू परचेज है, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज है, तो वो भी कर देने का. बोलने का मतलब क्रेडिट को छोड़ के सब कर देने का. नॉर्मल पोस्टिंग. अंत में आने का क्रेडिट परचेज. अभी इसमें सबकी एंट्री सेम है. परचेज टू आर, परचेज टू वाई, परचेज टू जेड, परचेज टू एन, राइट? लेकिन आई वोंट राइट द नेम्स अगेन. So I've already written those names in the purchase book. So what am I supposed to write over here? Two sundries as per purchase book. Two sundries as per purchase book. कितना? 5480. डेट क्या होगा? 31/1/11. Last date of the month, and then you simply balance it. 6280, 6280, 6280 by balance CD becomes 2 balance BD. This chakkar will go on for 11 months, 12 months, sorry, 12th month के end में कहाँ चला जाएगा ये? ट्रेडिंग. परचेज जाता है ट्रेडिंग में. समझ में आया कैसे करने का लेजर? बाकी सारे परचेज के पोस्टिंग नॉर्मल, जैसे आप एंट्री वाइज करते हो स्प्लिट करके, वैसे ही. खाली क्रेडिट परचेज के नाम वापस नहीं लिखना, सीधा उधर सन्ट्रीज लिख देना. सन्ट्रीज एज पर परचेज, सीधा टोटल. सिमिलरली सेल्स, डू यू हैव एनी कैश सेल्स? यस. 26 तारीख को हुआ था कैश टू सेल्स. तो कैश में टू सेल्स, सेल्स में बाय कैश कितना था? 600. तो बाकी सारे पोस्टिंग नॉर्मली. अब जो क्रेडिट वाले हैं उनके लिए पार्टी टू सेल, ए टू सेल, बी टू सेल, सी टू सेल, एम टू सेल वापस करने की जरूरत नहीं है. बराबर है? तो सीधा क्या लिखने का? सेल्स में बाय सन्ड्रीज एज पर व्हाट? सेल्स. By sundries as per sales book 4950. 4950 on which date? 31/1/11, and that's it. Your month is over, and then you balance.
to balance C on 31.11. You can buy balance PD. Sorted. Third account is purchase returns account. Can you see that? Purchase returns account दिख रहा है आपको? Purchase return में कुछ कैश वाला हो रहा है, सिर्फ क्रेडिट वाला है. तो हर एक की एंट्री में क्या है? पार्टी टू परचेज रिटर्न, पार्टी टू परचेज. तो परचेज रिटर्न में बाय पार्टी, लेकिन बाय पार्टी का नाम वापस लिखने की जरूरत नहीं. सीधा क्या लिखने का? बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न्स बुक. बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न्स बुक. कितना? 1 सिंपल 1. सीधा लास्ट डेट and then this will become to balance C. To balance CD 1. मिला? तो कैश वाला है तो ठीक है, वरना सीधा सन्ड्री सन्ड्री. और सन्ड्री इधर आएगा कि इधर, वो समझ में आया? परचेज में डेबिट में आएगा, सेल्स में क्रेडिट में. परचेज रिटर्न क्रेडिट में, क्योंकि जिधर बाय पार्टी है उसकी जगह पे बाय सन्ड्री. एंड व्हाट अबाउट सेल्स रिटर्न? टू सन्ड्रीज. डू नॉट हैव कैश वाला कुछ, तो टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न्स बुक. कितना है टोटल? 225 एंड यू बैलेंस. लास्ट डेट पे टोटल लिख के बैलेंस कर देना. ये सन्ड्री वाला भी एंट्री लास्ट डेट ऑफ द मंथ में जाएगा. ओके, बाय बैलेंस 220. समझा कि नहीं? गाड़ी बैलेंस बीडी नहीं आता तो आता है, देख सकते हो. That's okay. खाली CD लिखा तो नहीं चलेगा. CD लिख देना. Okay. That was your basic of 4 subsidiary book. Look at question number 2. Question number 2. Enter the following transaction in the purchase book and post them in the ledger. Question 2. देखो ध्यान से, खाली परचेज बुक और लेजर बुक है. लेजर मतलब नॉट ओनली परचेज अकाउंट, सारे. हाँ, इधर सारे नहीं बनाने. होलसम सम है तो खाली 4 बनाने का, बट ऐसा सब में सब बनाएंगे. मैं बताता हूँ लेजर आपको. तो परचेज बुक फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस. कैन यू सी दैट? दिल्ली. और उसका डिटेल दिया है. 100 डजन रेक्सॉन हवाई चप्पल एट 120 पर डजन, 200 डजन बल्कि लेदर चप्पल, ट्रेड डिस्काउंट 10%, फ्रेट चार्ज 150. देन 15 को है, अप्रैल 28 को है. 3 ट्रांजैक्शन दिया हुआ. मिला? नीड टू मेक ओनली परचेज बुक. परचेज बुक ड्रॉ करना, लेकिन इतना सा नहीं, ऑलमोस्ट 3/4 साइड का बना लेगा. हाँ जी, बुक परचेज बुक 3/4 साइड का परचेज बुक बना ले. जेपी आएगा, आएगा. रेट चार्ज है, रेट पेड नहीं है. व्हाट आई से? तो कैलकुलेशन वर्किंग ऑर्डर भी दिखा सकते हो, बुक में भी दिखा सकते हो. वो बुक में नहीं, इसलिए जगह जाए. ओनली परचेज बुक, एक ही परचेज बुक और लेजर. नाउ दीज, ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड सिंपल परचेज बुक. एनालिटिकल परचेज बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. एक्चुअल परचेज बुक है ना, 10 से 11 कॉलम का होता है. उसमें आपका ऑर्डर नंबर, चालान नंबर,
जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल जीएसटी, आईजीएसटी, वो सारा कॉलम्स होता है। सप्लायर का डिटेल, पेंडिंग अमाउंट, वो सब दिखता है वहाँ। तो 11-12 कॉलम का रहता है एनालिटिकल सब्सिडरी बुक, वो आपको नहीं है, आपको यही है, सिंपल है। सम्स में यही फॉर्मेट बनाना है आपको, सिंपल। अब देखो पहला वाला पढ़ो, परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस, दिख रहा है? तो डेट है आपका 4417 को आपने खरीदा, किससे खरीदा? अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली। तो इधर लिखने का अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली। ओके, क्या खरीदा उसका डिटेल बताने का। हाँ जी, क्योंकि अजय एंटरप्राइजेस मुंबई भी आ सकते हैं। 100 डजन्स रक्सॉन्स हवाई चप्पल, 100 डजन रक्सॉन्स हवाई चप्पल at the rate of 120 per dozen। तो रेक्सॉन्स हवाई चप्पल, रेक्सॉन्स हवाई चप्पल लिखना, और उसके बाद रेक्सॉन्स हवाई चप्पल इज 100 into 120 पर डजन। तो 100 into 120 कितना होता है आपका? 12। नेक्स्ट इज पल्की लेदर चप्पल, पल्की लेदर चप्पल, एक लाइन छोड़ के लिखना है ये पढ़ के। नहीं, साथ में लिख सकते हो। पल्की लेदर चप्पल इज हाउ मच? 200 डजन at 300 per dozen, which is 60,000। बराबर है? मिला? So total amount is I think 72,000, right? Right. 10% TD है उस पे 7,200। तो I think final amount आ रहा है आपका 64,800। Is that right? 120 क्यों ले रहे हैं? 12 होता है ना, एक में 12 होता है ना। 120 per dozen, 100 dozen at 120 per dozen। पर यूनिट नहीं है, पर डजन है। बराबर है? So 120 into 100 12,000, 200 into 300 60,000, less TD 72,000 minus 7,200 is 64,800। अमाउंट इधर नीचे अमाउंट कॉलम 64,800। इसलिए ये बड़ा बन रहा है क्योंकि डिटेल्स है। ये डिटेल्स या तो वर्किंग नोट में दिखाओ या तो इधर दिखा दो, दोनों में से एक जगह पे दिखाना, ठीक है? अभी फ्रेट का सीन क्या है देखो, फ्रेट पेड है कि फ्रेट चार्ज है? तो फ्रेट चार्ज का मतलब होता है फ्रेट पेएबल। फ्रेट चार्ज इज फ्रेट पेएबल, नॉट पेड बट पेएबल। व्हाट इज द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? पेएबल। एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन मैंने एक और चीज बोली थी, अगर एक ही जन को देना है तो नाम यूज कर सकते हो। तो फ्रेट टू अजय, मतलब हमारा फ्रेट अजय ने पे किया, हमें उसको पैसा देना। फ्रेट चार्ज मींस फ्रेट पेएबल, फ्रेट चार्ज मींस फ्रेट पेएबल। तो फ्रेट टू अजय, फ्रेट टू अजय, तो वो कौन से बुक में जाएगा? फ्रेट टू जेपी। तो ड्रॉ जेपी। फ्रेट टू अजय 150, फ्रेट टू अजय 150। बट दूसरे वाले का फिर उसके नीचे। हाँ, मतलब दूसरे वाले का यहाँ लिखना, ऐसे पहले वाले का ऊपर लिखना, दूसरे वाले का इधर लिखना, इसके ही एरिया में आना चाहिए, वो ध्यान रखना। फ्रेट चार्ज का मतलब समझा? फ्रेट
पेएबल, दैट इज फ्रेट पेएबल। तो फ्रेट टू पार्टी मतलब फ्रेट एक्सपेंस बढ़ा और पार्टी लायबिलिटी बढ़ा, हमें अजय को पैसा देना बढ़ा। दूसरा वाला ट्राई करो, सेम है। 15 अप्रैल परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली। तो 15 अप्रैल 17 बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली क्या खरीदा है? 50 डजन मैक्स शूज। These are Max shoes. कितना है? 50 डजन at the rate of 400 per dozen, मतलब I think 20,000. And 100 pair of sport shoes. Sport shoes at the rate of 140 per pair, मतलब I think 14,000. Am I right? Total 34,000. Less 10% TD, so you arrive at 30,600. 30,600. Is that right? Again, freight charge there. Freight charge means freight payable. What entry will pass now for freight payable? Freight to what? Balaji. Freight to Balaji. 200. Freight to Balaji 200. Freight to Balaji 200. That is one JP. JP वो लोग बोलेगा नहीं, goes without saying. 4 बुक के साथ JP पड़ा रहेगा। दूसरा वाला समझा? सेम ही है, खाली कैलकुलेशन अलग हुआ है। तीसरा वाला भी सेम ही है। परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़। तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ ट्राई करो खुद से। तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ क्या खरीदा? लेदर शूज 40 पेयर एट 400 पर पेयर। लेदर शूज 40 एट 400 पर पेयर बोले तो 16,000 आई थिंक, राइट? नेक्स्ट इज रोजी हवाई चप्पल। रोजी हवाई चप्पल, दिस इज 180 पर डजन में 100 डजन एट 180 पर डजन मतलब 18,000। दिस इज ऑल्सो आई थिंक 34,000। लेस टीडी कितना है? 10%, so you arrive at 30,400। and again there is freight charge। freight charge मतलब freight charge is freight what? Payable। freight to Tripti Industries Bahadurgarh 100। Tripti Industries Bahadur। Alright, सेम ही था तीनों, खाली आपको डिस्क्रिप्शन देना है क्या खरीदा और मल्टीप्लिकेशन, बाकी तो नाम ही लिखना है। डिस्क्रिप्शन दिया है तो 2 तरीके हैं, या तो नोट करो फिर फाइनल अमाउंट लिखो, बट वही होता है, नोट में भी उतना ही लिखना है, तो बेटर इट इज योर ओनली। अभी लेजर नहीं, लेजर सेम ही रहता है, लेकिन लेजर पूछ लिया ना, इसमें लेजर पूछा तो खाली एक अकाउंट नहीं, सारे बनाना। मतलब कौन से बनाओगे? पहले तो परचेज अकाउंट बनेगा, फिर अजय बनेगा, बालाजी बनेगा, तृप्ति और फ्रेट, 5 अकाउंट। बट छोटे छोटे अकाउंट है, एक लाइन की पोस्टिंग है, तो एक ही पेज पे 5 अकाउंट फिट हो जाएंगे। 1 पेज 5 स्मॉल अकाउंट। इक्वल डिवीजन कर लो, जजमेंट लेके कर लो, इक्वल डिवीजन कर लो। 1 पेज 5 अकाउंट, 5 लेजर बना दो। जब भी फुल प्लेजेड आता ही नहीं है, फुल प्लेजेड मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला है, फुल प्लेजेड में खाली वही 4 बनाना, सिंगल में पूछा तो सारे बनाना। तो परचेज अजय, बालाजी, तृप्ति एंड फ्रेट, 5 अकाउंट्स जजमेंट के हिसाब से डिवाइड कर लेना, इक्वल रखना है 5 अकाउंट्स। ये किया, जर्नल हो गया, 5 अकाउंट्स।
Purchase Ajay, Tripti and Balaji and freight. तीन लोग नहीं है, कौन नहीं है? आजू बाजू में आराम आया है। मनन भी आया है, मनन अजय शाह भी आया है, वकील भी आया है। Three people एक तो ध्रुवी, खुशी और वो अटेंडेंस ले लो ना। हो गया, मिल गया ना? खुशी शाह, ध्रुवी डेडी और तीसरी वो कुंदर, आशना कुंदर। तीन जन मिल, ध्रुवी, खुशी और आशना। चलो शुरू करते हैं फटाफट। कैसे करना है? अकाउंट वाइज जाना, पहले परचेज हो जाए नहीं, कैश परचेज लास्ट सब में था तो लिख दिया, यहाँ पे तो नहीं है। और कुछ है परचेज से रिलेटेड? खाली क्रेडिट वाला है, क्या लिखो? बाय क्रेडिटर की बाय सन्ड्रीज? बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक कितना है टोटल? ये टोटल मान लो कितना आ रहा था? 126 एग्जैक्ट। परचेज में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 2 आएगा और लास्ट डेट पे आएगा टू पार्टी लिखने के बदले टू सन्ड्रीज, टू पार्टी लिखने के बदले टू सन्ड्रीज एंड बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 1,26,000। परचेज टू पार्टी, तो परचेज में टू सन्ड्रीज और बाय बैलेंस। परचेज में टू सन्ड्रीज और बाय बैलेंस। टू सन्ड्रीज और बाय बैलेंस। नेक्स्ट, इनमें सन्ड्री सन्ड्री नहीं लिखना है, इनमें नॉर्मल पोस्टिंग करनी है। तो अजय में क्या करोगे? परचेज को अजय, तो अजय में बाय परचेज, बाय परचेज कितना था उसका? 64,800 4 इसमें डेट है नॉर्मल। और एक है फ्रेट, तो अजय था, तो अजय में क्या आएगा? बाय फ्रेट। कितना था उसका फ्रेट? आई थिंक 150, वो भी सेम डेट बस, एंड यू बैलेंस 64,950, 64,950। आई थिंक बाकी तीनों सेम ही दिखेंगे, मतलब पार्टी के अकाउंट जो है वो इसके जैसे ही दिखेंगे आपको। समझा ये वाला? बालाजी में भी क्या आएगा? बाय परचेज 30,600 एंड फ्रेट का भी पैसा देना बाकी है, तो बाय फ्रेट 200। डेट है 15। $30,800। Tripti Industries also buy purchase 30,600 and buy freight 100 है ना उसका? This is 30,700। इसमें कोई सन्ड्री वंड्री नहीं आएगा, बाकी अकाउंट्स में डेट वाली नॉर्मल कुछ सन्ड्री सन्ड्री खाली परचेज सेल्स और रिटर्न्स में टोटल ऑफ क्रेडिट। And what posting will come in freight account? Freight to Ajay, freight to Balaji, freight to Tripti. Either to Ajay
then to Balaji, and to Tripti. बराबर, this will be by balance C. 450 आ रहा है. सिंपल, खाली आपको थोड़ा हजम पट्टी ज़्यादा है लिखने का, बाकी है इजी. सिंपल बट थोड़ा सा लेंथी. समझा? गाड़ी गाड़ी तो नो. I want you to try question 4 and 5. 4 और 5 खुद से ट्राई करना है. 4 और 5 में खाली क्या फर्क किया है, ये परचेज था, उधर सेल्स, और सारे लेजर बनाने. 5 उसी के लेजर, तो 4 और 5 खुद से ट्राई करो. 4 और 5. और 4 में लेजर नहीं बोला. 5 में बोला, 5 में 4 का ही लेजर, कनेक्टेड सम. अरे 4th सम में सेल्स बुक पूछा है और 5th में उसी का लेजर पूछा है, तो कनेक्टिंग कर. 4 और 5 करो. हाँ, नहीं, पोस्ट इनटू लेजर द एंट्रीज डन इन 4, मतलब सारे, मतलब कौन से बनेंगे आपके. सेल्स अकाउंट, अजंता इलेक्ट्रिकल दिल्ली, अजंता इलेक्ट्रिकल प्लाजा और हरियाणा ट्रेडर्स. 4, इसमें फ्रेट नहीं. 4 बनेंगे, जेपी की जरूरत नहीं. नो नीड ऑफ जेपी, नो नीड ऑफ फ्रेट. 4 अकाउंट्स एंड सेल्स बुक. करो, ट्राई करो. 4 और 5 करो फटाफट. सेल्स है, थोड़ा लेजर में ध्यान रखना, उनका बाय सेंट्री हो जाए. चलो उड़ाओ फटाफट. और जैसे जैसे मॉड्यूल आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाना, फिर पेंडिंग वर्क इतना बढ़ जाएगा ना, टाइम ही नहीं मिलेगा. अभी टाइम है आपके पास. जर्नल लेजर 2 हो चुके हैं, आज सब्सिडरी हो जाएगा. तीसरा मॉड्यूल आएगा सब्सिडरी का, तीसरा चैप्टर.
4 अकाउंट, सेल्स बुक और 4 अकाउंट। रेट नहीं है, बोलो। हो गया? Guys, good.
बराबर भी करने का क्या है टोटल सेल्स बुक का 118,750 मिला। हाँ सर अकाउंट में सीधा बाय सेंट्री और तीनों में टू सेल और बैलेंस। नेक्स्ट हाँ उनका अच्छा कल पोदार का एक्स्ट्रा रिवीजन लेक्चर है 5 to 7। कल पोदार एक्स्ट्रा रिवीजन इवनिंग 5 to 7 एवरी का साथ सम करके आना है। सर इतना सारा होमवर्क नहीं चलेगा मंजूर है पूरे हाथ क्यों रहना आपका नाम सर कल अरे ये सब कल सिर्फ डेब्री कराने वाला टोरंटो कोच बची हाँ डेब्री और थोड़ा सा एक्टिविटी 5 to 7 पूरा ओमकार तो आता नहीं है। सर वो साथ सब क्लास में कर दो चलेगा हो जाएगा सर फ्राइडे एटलीस्ट कल तक 4 सम करके आओ फर्स्ट फोर सम सर जिसका नाम है उसके दो उधर फर्स्ट सम and please you have to practice for first four sums फाइव टू सेवन कल है उधार का एक्स्ट्रा और सिंगल एंट्री नहीं है ना फिक्स। एक्सट्रैक्ट मेथड पूछा ना एक्सट्रैक्ट पूछ लो वो पर्सनल में पूछा था ग्रुप में पूछो। एक्सट्रैक्ट मेथड है कि नहीं पूछ लो। कल उनका एक्स्ट्रा लेक्चर ओमकार कल 5 बजे है। इन्फॉर्म कर रहा हूँ बस तेरे ऊपर आने नेक्स्ट बैच को तो छुट्टी चालू है उधार 19 मार्क नहीं लाना है गिफ्ट में थोड़ा ज्यादा लाने के। चलो डन थर्ड सम अरे डिस्कस कर लो सर सर करने के लिए सब पहले का अच्छा हाँ See now focus. Sum number 3. ध्यान दो इधर। Third sum.
The rough book of Messrs. Naran and Company contain the following. Make out the purchase book. आपको बोला है कि purchase book बनाने का. So, draw fast. सिर्फ परचेज बुक सर. Only purchase book, no ledger, nothing. Only purchase book. No ledger. No JP है तो बनाने का. है. See, पढ़ो. थोड़ा सा अतरंगी है. Module sum it is. पहले वाले को छोड़ के सारे मॉड्यूल के कर रहे हैं हम लोग. Third sum is also from module. Respect. See the first one. Purchase from Brown and Company on credit 5 gross pencils and 100 per gross and 1 gross register at 240 per dozen. Less TD 10%. अभी देख के पता चल रहा है what is he buying? Pencils, register. What is he dealing in? He's a stationery dealer. So what are stationery for him? Goods. So purchase book इसमें नहीं आएगा. इसके पेटी कैश में नहीं आएगा. इसके लिए गुड्स. वो जो ऑफिस के लिए ला रहे हैं वो डाल सकते. Then purchase from Brown and Company on credit. So 1st Feb 2016. Brown and Company. What are you buying? 5 gross pencils. So इधर लिख देने का pencils. 5 gross pencil and 100 per gross. What is a gross? Anyone? 12 dozen. 12 dozen is 1 gross. Okay? This is not that 3 DD wala gross. 12 dozens are also known as a gross. Okay? So 5 gross pencils and 100 per gross. So 5 into 100 makes it 500 per gross value. And 1 gross register. 1 gross register at 240 per dozen. So how many dozens in 1 gross? 12 dozens. 12 units means 1 dozen. In 12 dozens means 1 gross. समझ में आया? 1 gross is 12 dozens, 144 units. So registers कितना है? 8 gross register 240 per dozen. So it is basically 12 into 240. समझ में आया? और ये ऐड करेंगे तो मिलेगा 3380. Is there any TD? Yes sir. Less TD 10%, 338. How much do you pay? 3042. Okay. समझ में आया? The next one is purchase for cash from stationery mart. ये cash purchase किधर जाएगा? Cash book मतलब transaction on 2nd is a cash purchase which will go in cash book. Mila? Cash purchase will go in cash book, so note. Third one, purchase a computer for office use from office goods company on credit. Computer on credit किधर जाता है? So make a small JP. JP में क्या एंट्री आएगा आपका? कंप्यूटर टू ऑफिस गुड्स कंपनी. कितने का लिया है? 30,000. Because you bought it on credit, it went into JP. What if it was on cash? नोट में जाता. तो तीनों वैरायटी है, ध्यान से पढ़ना. एक स्टेशनरी क्रेडिट पे था, फिर कैश पे था, फिर कंप्यूटर क्रेडिट पे था, so that was JP. So be alert. Fourth one, purchase on credit from the paper company. 5 reams of white paper and 10 reams of ruled paper. These are also, I think, goods. Stationery here. So this is who? The paper company. क्या खरीदा है? पहला तो white paper. White paper का कितना reams खरीदा उसने? 5 reams at 100 per ream. That is 500. And ruled paper. Ruled paper is your foolscap paper. This is 10 reams at 150 per ream. So that makes it 1500. Total is 2000.
less TD, 10%, it is 200, 1,800. And purchase 1 dozen gel pens at 15 each from Verma and Brothers on credit. ये भी क्रेडिट पे खरीदा है, स्टेशनरी है. So Verma Brothers gel pens. This is 15 each, 1 dozen, right? So 12 into 15 बोले तो 180. There is no TD, I think. Straight in the outer column. What's your final total? 5022. No need to make any ledger. समझा ये वाला? Only purchase book. This can come for 4 marks of IMA. In fact, this question has been asked. पेपर में आ चुका है 4 मार्क्स. ये के पेपर सीए के 4 मार्क्स. ये सारे मॉड्यूल के आपका सीए का पूरा पेपर मॉड्यूल से ही आने वाला है, याद रखना. 90% ऑफ द पेपर इज मॉड्यूल, 10% इज मॉड्यूल बेस्ड. 90% डायरेक्ट मॉड्यूल का ही है. 10% थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है, वो भी क्रैक हो जाता है अगर मॉड्यूल आता है. मॉड्यूल मत छोड़ो, एक क्वेश्चन मत छोड़ो. चलो नेक्स्ट वन. क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6. Question 6 is for homework. Question 6 में बहुत सिंपल है. आपको कौन सा बुक दिया? रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या? परचेज रिटर्न बुक. और पूछा है कि पोस्ट देम इन द लेजर. सो कौन सा अकाउंट बनाएंगे आप? परचेज रिटर्न, मॉडर्न इलेक्ट्रिक एंड राजेंद्र प्रकाश. मिला 3 अकाउंट. सुना? Are you listening? आता है लेजर. परचेज रिटर्न में क्या दिखेगा? बाय सेंट्रीज. हेलो. परचेज रिटर्न में बाय सेंट्री, राजेंद्र में 2 परचेज रिटर्न और मॉडर्न इलेक्ट्रिक में 2 परचेज रिटर्न. सुना? 3 लेजर है. सम नंबर 6 होमवर्क. लास्ट सम नंबर 7. 7 सम ड्रॉ करो. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस prepare purchase returns book of Alpha and Company, a sari dealer. Only purchase return book, no ledger. Only purchase return book, no ledger. देखो बनाओ purchase return book. Last sum number 7. I'll share the module today, subsidiary का. सारा क्वेश्चन देख लेना फर्स्ट पार्ट का. 4 बुक तक पूरा कंप्लीट रखना. नेक्स्ट क्लास वी आर डूइंग कैश बुक. पेटी कैश एंड उसके बाद पेटी कैश तो छोटा ही है. उसके बाद हम स्टार्टिंग में कैपिटल एंड रेवेन्यू, वो नया टॉपिक है, वो आपको 11th में नहीं, खाली जर्नल में ही. और वो है ही नहीं काम का, क्या मतलब है. देखो परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा एंड कंपनी या सारी डीलर. ध्यान से पढ़ो. परचेज रिटर्न बुक पूछा है, परचेज बुक नहीं है, परचेज रिटर्न बुक है. 4/1/2020 डेबिट नोट नंबर 101 रिटर्न टू गोयल मिल सूरत 5 पॉलिएस्टर साड़ीज एट 1000 रुपीज. सो नंबर भी दिया है तो 4/1/20. दिस इज व्हाट गोयल मिल्स सूरत. This is what polyester sarees. This is 5 into 1000. That is 5000. मिला? Number is 101. Will you record 9th का? Why? देखो क्या दिया है 9th को. Garg Mills Kota accepted the return of goods which were purchased for cash from us.
क्यों? इसका एंट्री क्या बनेगा? कैश में रिटर्न हो, कैश टू परचेज रिटर्न गोज इन कैश। सो नोट में लिख देने का नोट ट्रांजैक्शंस ऑन 9th is a cash return of goods which will be recorded in cash book। समझ आया ये पार्ट? बताया था, याद है? अगर परचेज आपका कैश में तो परचेज रिटर्न्स कैश, सेल्स अगर कैश है तो सेल्स रिटर्न कैश। आपका हिंट भी है उधर डेबिट नोट नंबर, दूसरे वाले में डेबिट नोट नंबर नहीं है क्योंकि कैश आ गया ना, तो कोई पार्टी का नाम है ही नहीं उधर डेबिट करने लायक। समझा? डेबिट नोट क्यों होता है कि आपने पार्टी को डेबिट कर दिया, आप उसका पैसा कम दो लेकिन आपने तो पैसा ले लिया, तो पार्टी का कोई लिंक ही नहीं है वहां पे। 16th वाला क्या हो रहा है वापस? रिटर्न टू मित्तल मिल्स, परचेज रिटर्न की नोट 16 परचेज रिटर्न, दिस वाज ऑन क्रेडिट, मिला मित्तल मिल्स बैंगलोर, हेलो। दिस इज सिल्क साड़ीज, सिल्क साड़ीज कितने हैं? 5 at 2600, तो 2 6 12 13 ना? मेरा पार्टी का नाम है तो क्रेडिट, और नोट का भी हिंट है, नोट क्रेडिट पर ही होता है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपको क्रेडिट रिटर्न्स ओनली, कैश रिटर्न में डेबिट नोट क्रेडिट नोट आएगा ही नहीं, समझा? उसके बाद वाला आएगा वो रिटर्न वन कंप्यूटर बीइंग डिफेक्टिव टू बीएन कंपनी, जेपी है, क्यों? एसेट, तो वो छोटा सा जेपी। कंप्यूटर रिटर्न करने का क्या एंट्री करोगे? बीएन कंपनी टू कंप्यूटर, बीएन कंपनी टू कंप्यूटर, दिस इज ऑन 30 एंड अमाउंट इज 35,000। नरेशन आता है, हम लोग स्किप कर रहे हैं। कंप्यूटर रिटर्न टू दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स, तो स्टे अलर्ट। एसेट रिटर्न है, एसेट क्रेडिट है तो जेपी, कैश हो रहा है तो कैश बुक, ओके सर बुक दिखाना। हाँ, और एक सम होमवर्क है आपका, दैट इज थर्ड, नॉट थर्ड, 6th में 3 अकाउंट्स होमवर्क। नेक्स्ट क्लास आई एम स्टार्टिंग विद कैश बुक, डू नॉट रिमेन एब्सेंट, वेरी वेरी